Okay, in this video, we are going to discuss about what is the difference between linear and conditionals. Okay, earlier we did using combination table, we wrote sentences like this. Like for present, we wrote I do eat, I did meet, I will eat. These are very simple sentences. इसमें ज़्यादा कुछ सिचुएशन वाली बात नहीं है. जस्ट सिंपली simple present में ये tenses लिखा गया है. Similarly, when you see the gerund adjective noun for am, is or are, these are very simple sentences. Like gerund है तो I am eating, adjective है तो I am good, noun है तो I am a student. तो यही मैं यहाँ भी रिपीट कर सकता हूँ, पर क्योंकि ये he, she, it के लिए है तो मैं he is working, he is nice, she is a teacher. And if you actually see, all these are like अभी यहाँ participle noun है I have eaten, I have a car. He has spoken, he has a pen. I have been going, I have been kind, I have been a student. These are, you see, are very simple sentences. Therefore इसलिए ये जो होमवर्क हमने किया था इसको हम लीनियर बोलते हैं क्योंकि ये इजी है. ओके, सो कंडीशनल में एक कंडीशन होता है, एक सिचुएशन होता है. सो आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे कि एक कंडीशन को इजीली कैसा बना सकते हैं, और राइटिंग दैट इज एक सेंटेंस जब फ्रेम करते हैं तो इजीली कैसा कर सकते हैं. ठीक है. ओके, सो आई डू ईट बनानास एवरी डे. He does homework at his study table every day. Now, if you notice these sentences from the previous sentences, see, I do eat, he does eat. But look here, I'm adding some context. I do eat bananas every day. Now, there's a condition, there's a situation, there's a context to this sentence. Now, similarly, he does homework at his study table every day. अब इसमें भी एक context है. Like, look, I'm coming is linear, but I'm coming to meet you. I'm good at painting. I'm a sincere student. See, now there's a context. There's additional detail that gives it greater meaning. The sentence now become richer, right? तो इसको बोलते हैं conditions. Now, अब ये जो भी sentences आप सब देख रहे हो, I'll just read it for you quickly. He is working hard these days. Adjective है, so he is a good father to his kids. I can just say he's a father, but I'm saying he's a good father and also to his kids. Or noun, like he's an employee, but he's an employee in central government. So I have participle. I have met tak ho sakta tha, but I am adding detail. I have met him to fix an appointment. I have a wife who takes care of me. He has taken her to the party. He has a dog to protect him. You have been working in the kitchen since morning. They have been kind to us since 1990. If you see, there's an additional detail that gets added towards the end of each linear sentences, and therefore it becomes conditional, right? So, how does this work? Let me teach you better now. Again, I just added few more examples here. Like I was going when I met him. The reason when I'm using when, because was और when में यहाँ when आता है और will be में भी when आता है. अगर had की बात कर रहे हैं तो before आएगा, इसलिए मेरे पूरे sentences में भी before आया है. हालांकि मैंने participle और noun को ध्यान में रखते हुए sentences बनाया, पर क्योंकि ये had will have है तो before आएंगे और यहाँ when और when आएंगे. So इस तरह conditional में हम detail and the complete sentences we make, not just they had finished or I was going. You actually add I was going when I met him. They had finished homework before the teacher came. So now there's a context, there's greater detail and nice meaning, right? So linear sentences are easy, but conditional sentences take time because you think to add detail. Now the reason I'm teaching this class is to help you reduce this time. ये time मैं कम कराऊंगा. Okay, there's a certain set of tricks that we can use which will also help you in sentence formation as we progress into the course. Okay, so I'm going to teach you a method to make it easy, right? Okay, so I want you to write as I teach, like say verbs. Okay, what are verbs? Verbs are nothing but for example, जब भी verb आएगा उसके बाद एक noun आएगा, या वो वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन आएगा और उसके बाद वो नाउन आएगा. See, the matter is like this. See, either we'll get a verb and then a noun, or we'll get a verb and preposition and a noun. ये जो मैं रूल्स बता रहा हूँ, ये मैं एक सेंटेंस, बड़े सेंटेंस में एक छोटा भाग के बारे में बता रहा हूँ
कि वो भाग में जब एक वर्ब आएगा तो उसके बाद नाउन आएगा या प्रीपोजिशन आकर नाउन आएगा। जब यहाँ एग्जांपल्स देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ओके, से ईटिंग। ओके, व्हाट इज ईटिंग? वर्ब। व्हाट एम आई ईटिंग? बनाना, विच इज अ नाउन। डूइंग, क्या डूइंग? होमवर्क, दैट इज अगेन अ नाउन। लाइक फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लाइंग इज verb, sky is the noun. I mean, I can say the sky is the noun. No, no, the in the sky is actually noun. We will treat it like that. In is the preposition. Okay, because the is an article, so that comes with noun, not with in. Okay. Similarly, dancing है, the floor noun है. हाँ, dancing ये है और noun preposition. It's like this is the verb. This is verb होता है. हाँ, action, एक action है verb. तो एक्चुअली एक्शन में क्या होता है समझिए। डू, नेम प्लेस एनिमल थिंग। यस, राइट, नेम प्लेस एनिमल थिंग को नॉन बोलते हैं। सो ये जो वर्ब है, वर्ब में एक डूअर होता है, काम करने वाला, और काम करने वाला होता है तो काम लेने वाला भी होता है, तो रिसीवर भी होता है। ओके, तो काम, काम क्या है? वर्ब। तो वर्ब का डूअर होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग बनाना। तो आई एम द डूअर, banana is the receiver of my action. I am doing homework, I is the doer again, receiver homework है, वर्ब तो डूइंग है। तो हर एक वर्ब को एक डूअर होता है, एक रिसीवर होता है। इसी को हम डूअर रिसीवर कह सकते हैं या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो डूअर सब्जेक्ट होता है और रिसीवर ऑब्जेक्ट होता है। गॉट इट? या मतलब सिंपल सेंटेंस में डर का हम क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोला आई एम ईटिंग, तो आई डूअर है और ईटिंग वर्ब है। तो ईटिंग में क्या खा रहा हूँ? बनाना खा रहा हूँ, पिज्जा खा रहा हूँ, वो रिसीवर है। मतलब डूअर और रिसीवर दोनों भी नाउन्स है। वो कोई आदमी है, कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई है, राइट? तो ये जो मैं बोला, यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्ब नाउन की बात हो रही है या वर्ब प्रीपोजिशन की नाउन की बात हो रही है, ये ऑब्जेक्ट वाला नाउन है। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, राइट? कभी कभी वर्ब आएगा पर ऑब्जेक्ट, जैसे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई आएगा। अगर पूरा सेंटेंस हम देखते हैं तो बर्ड्स होगा सब्जेक्ट और स्काई हुआ ऑब्जेक्ट। क्या हो रहा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में? फ्लाइंग हो रहा है। हाँ, वो तो वर्ब्स के हिसाब से प्रीपोजिशन आता है, थोड़ों को नहीं आता है। पर मॉरल ऑफ द स्टोरी या बॉटम लाइन ये है कि वर्ब के बाद जरूर नाउन आएगा, शायद प्रीपोजिशन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, पर नाउन तो जरूर आएगा, और ये नाउन्स ऑब्जेक्ट वाला नाउन है। समझे आप? ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं रुकूंगा आपके लिए, आप ये नोट्स लिख सकते हैं। आज जो आपने करेक्ट सेंटेंस किया ना हम्म जिस टाइम पर हम्म मैंने लिखा था आई विल रीच विदिन 10 to 15 जैसे कुछ लिखा था। वो मैंने लिखा था, आई विल हैव। हाँ आई विल बी रीचिंग ऐसे कुछ लिखा था, आई विल बी रीच। हाँ, आपने आपने लिखा था। नहीं, आपको जो बोलने का मतलब है कि मैं 30 मिनट से पहले, पहले वहाँ पहले इंपॉर्टेंट है, मतलब है बिफोर, और वो फ्यूचर है, तो ऑब्वियसली विल हैव आएगा ना, क्योंकि यहाँ किसी फ्यूचर में होने वाली घटना से पहले ये घटना हो जाएगी, ये बताना इम्पोर्टेंट है, तो विल हैव आएगा। हाँ, विल हैव रीच्ड। ओके, एनीवे, फॉर द सेक ऑफ यूट्यूब ऑडियंस, आई कैन आई मूव अहेड? या ठीक है। सो हाँ, ये अगेन और एक कॉन्सेप्ट है, प्रोनाउन टू एंड प्रोनाउन थ्री। ओके, प्रोनाउन वन ये जो है आई यू ही शी वी दे इट, अब तक तो हम ये जान ही चुके हैं कि ये 7 प्रोनाउंस होते हैं, राइट? तो प्रोनाउन टू कैसा लिखते हैं? समझिए कार है, ओके, अ कार। तो अगर कार आई का है तो आई कैसा बोलेगा? माई कार। यू का है तो योर कार। ही का है तो शी का। तो मतलब
हिस कार हर कार ऐसा बोलिए ताकि आपको समझ में आएगा कि आप कैसा बोल रहे हैं। वी का our sir, दे, their sir, इट, his sir, राइट। तो yes, आप नोटिस कीजिए ये जो प्रोनाउन टू है इसके बाद एक नाउन लग रहा है, हाँ, लग रहा है ना। हाँ, तो इसका मतलब है जब भी प्रोनाउन टू आएगा उसके बाद एक नाउन लग सकता है, okay, राइट। yeah, अभी प्रोनाउन थ्री देखते हैं। अभी देखिए किल है, ओके। किल समझो आई किल है, मतलब आई किल। तो आई किल मतलब है आई सब्जेक्ट हो गया, इधर आई डूअर हो गया ना। okay, हाँ, पर अगर यही पूरे 7 प्रोनाउंस को अगर मैं रिसीवर बनाता हूं, जैसे कि किल, अगर मैं किलिंग कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई किल। okay, कोई किल कर रहा है और मैं वो एक्शन को रिसीव कर रहा हूं, मतलब यहां मेरी हत्या होने वाली है, तो मैं क्या बोलूंगा, ही किल्स मी। okay, क्योंकि यहां मैं अब आई क्या हुआ, आई रिसीवर हो गया। okay, समझे आप, हाँ, आई रिसीवर हो चुका है। तो हम्म, जब ये 7 प्रोनाउंस को हम चेंज करते हैं रिसीवर में तो क्या होता है देखते हैं। तो आई हो गया मी, किल यू, किल हिम, किल हर, किल अस, किल देम, किल इट। समझे आप, yes, यहाँ डूअर है तो आई यू ही शी वी दे इट। रिसीवर जब बन रहा है तो मैं बस एक वर्ब किल की मदद लेकर मैं ए प्रोनाउन थ्री, ये जो भी है रिसीवर ऑफ द सब्जेक्ट को मैं लिख रहा हूँ, ओके। तो ये yes, सब हुआ प्रोनाउन थ्री। उसी प्रकार एडिशनली ये तीन भी लिख लीजिए, जैसे कि दिस और दैट, okay, ओके। दिस और दैट, फॉर एग्जांपल मेरे पास रेड पेन है, ब्लू पेन है, मैं रेड पेन ब्लू पेन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा दिस और दैट। आई एम यूजिंग ए सब्स्टिट्यूट। जनरली प्रोनाउन का मतलब है सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन। एक नाउन, एक नाम के बजाय हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। okay, जैसे कि मैं नहीं बोलूंगा आई ट्रेनर वेंकट, मैं बोलता हूँ सिर्फ आई। okay, मैं आपका नाम नहीं लूंगा सौमेंद्र, हर बार मैं बोलूंगा यू। okay, उसी तरह मैं वो बोलूंगा, वो बच्ची बोलूंगा, या ये बोलूंगा, मैं दिस दैट यही बोलूंगा, पर स्पेसिफिकली नेम नहीं लूंगा। okay, तो वो है प्रोनाउन। और प्रोनाउन में हम क्लासिफिकेशन किया कि प्रोनाउन वन अगर डूअर वाला है तो प्रोनाउन वन है, रिसीवर वाला है तो प्रोनाउन थ्री है। ये इसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं, मतलब माई, माई का कार, आई का कार माई हुआ, यू का कार यूर कार हुआ, मतलब okay, हम पोजेस कर रहे हैं कुछ चीज को। okay, तो इसलिए इसको पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं। हालांकि हम प्रोनाउन वन, प्रोनाउन टू, प्रोनाउन थ्री इस तरह सीखते हैं। ये टेबल आप लिख लीजिए, जैसा आप देख रहे हैं वैसे ही लिख लीजिए, मैं ये मार्किंग्स हटा दूंगा, okay, राइट। हो गया sir, ओके, सो तो इस अभी मैं नाउन्स, मतलब जो रूल्स में जो बता रहा था शुरू से उसमें एडिशंस करूंगा। ये जो ब्लू में है वो दरअसल रूल्स हैं, जो कंडीशनल्स के रूल्स में जो बताने वाला हूँ। तो एक वर्ब के बाद एक नाउन आ सकता है जैसे कि ऐसा, या वर्ब प्रिपोजिशन नाउन आ सकता है जैसे कि ऐसा। नहीं तो एक वर्ब के बाद वो जो नाउन आ रहा है वो नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन थ्री भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हेल्पिंग मी, ये प्रोनाउन थ्री है। हेल्पिंग हर, ये भी एक प्रोनाउन थ्री है। इसका मतलब है वर्ब के बाद एक प्रोनाउन थ्री भी आ सकता। अब उसी प्रकार वर्ब प्रिपोजिशन नाउन के बजाय एक प्रोनाउन थ्री आ सकता, जैसे कि टॉकिंग टू मी, प्लेइंग विथ हर, ओके। ये प्रोनाउन थ्री है और ये वर्ब है, ये प्रिपोजिशन है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस हम सब नाउन के बजाय बोल रहे हैं कि प्रोनाउन थ्री भी आ सकता है, ठीक है, ओके। अभी प्रीपोजिशंस के बारे में, प्रीपोजिशंस के बारे में कंडीशनल में रूल्स ये बताते हैं कि जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद नाउन आएगा, जैसे कि इन, एट, फॉर, ऑन, पूरे प्रीपोजिशन है और हर एक प्रीपोजिशन को एक नाउन लगता है, राइट। सो दीज आर द नाउन्स, ओके। इन द कार, एट द स्कूल, फॉर द डेवलपमेंट, ऑन द रूफ। तो रूल ये है कि जब भी प्रीपोजिशन आएगा एक नाउन जरूर आएगा उसको।
हालांकि वो प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में कुछ और लग सकता है, क्योंकि नाउन को अब तक हमने देखा कि बहुत कुछ लग सकते हैं। तो वो भी है, पर इसको ऐसा, ये सेगमेंट को तो ऐसा देखना चाहिए कि इनके बाद कार आया, एट के बाद स्कूल आया, फॉर के बाद डेवलपमेंट आया। डेवलपमेंट नाउन है क्योंकि इसमें मेंट है। और ऑन रूफ, ऑन को रूफ आया। ठीक है, ओके, ये भी लिख लीजिए आप जस्ट क्विकली। डू यू वांट टू राइट दिस आल्सो? ठीक है, हाँ। ये एडजस्ट स्कूल क्यों है? कोई प्लेस होगा तो हम एट लगाना चाहिए पोजीशन में। ये प्रिपोजिशंस कई प्रकार के होते हैं। बोलते हैं प्लेस वाले प्रिपोजिशंस, पोजीशन वाले प्रिपोजिशंस, टाइम वाले प्रिपोजिशंस। ओके तो एट 6 o'clock तो एट टाइम वाला प्रिपोजिशन हुआ। ओके एट द स्कूल अब ये प्लेस वाला प्रिपोजिशन हुआ। ओके एट द जॉइंट्स अब ये पोजीशन वाला प्रिपोजिशन हुआ। तो थोड़े प्रिपोजिशन जैसे कि इन और एट सबको लग सकते हैं, मतलब टाइम भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है। ओके ओके, फिलहाल तो हम प्रिपोजिशंस दो नाउन्स के पोजीशन को बताता है, सिर्फ इतना ही जान जान के हैं। अभी तक यही कंटेक्स्ट में रहेंगे। ओके सिर्फ प्रिपोजिशन के लिए एक डिटेल टॉपिक होगा जिसमें हम इन एक्सटेंसिवली वी विल डील विथ which preposition is what and how it has to be used. ओके ठीक है, ठीक है। So shall I go to the next slide? यस So noun, तो एक नाउन को क्या क्या आ सकता है? अब देखिए एडजेक्टिव। ओके, एक नाउन को एडजेक्टिव आ सकता है या प्रोनाउन टू भी आ सकता है। जैसे कि अभी कार, बॉय, किंग, ये नाउन्स है, पर इसको नाइस, गुड और ग्रेट लगे, ओके तो मतलब ये कार के साथ आए हैं। तो जब भी हम एक सेंटेंस देखते हैं लाइक आई हैव अ नाइस कार, तो ये सेंटेंस में नाइस कार को आया, आई को नहीं आया, किसी और को नहीं आया, ये कार को लगता है। तो एक एडजेक्टिव सिर्फ नाउन को लगता है, ओके राइट? सो दीज आर द एग्जांपल्स। ओके सो व्हाट इज द फर्स्ट रूल? इसका रूल ये है कि एडजेक्टिव और नाउन एक सेगमेंट होता है। ओके सेगमेंट बोलते हैं हम, जो भी मैं कंडीशनल्स के रूल्स बता रहा हूँ उन सबको हम सेगमेंट्स बताते हैं। तो अभी तक आपने जो भी ब्लू में लिखा रूल्स को, वो पूरे सेगमेंट्स है। मैं टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स बता रहा हूँ आपको। जैसे कि प्रोनाउन टू है, जैसे कि माई, देर, आर, मतलब माई ब्रदर, देर हाउस, आर नेशन, तो ये भी एक सेगमेंट है। इसका मतलब है एक प्रोनाउन टू एक नाउन के साथ ही लगता है। ओके तो प्रोनाउन टू और नाउन एक सेगमेंट है। ओके ठीक है, अभी आर्टिकल्स है जैसे कि ए एंड द, ए कार, एन ऑरेंज, द बिल्डिंग, तो आर्टिकल्स एंड नाउन भी एक सेगमेंट है। तो इस तरह में नाउन्स को ये सब लग सकते हैं, एडजेक्टिव और नाउन आ सकता है, या प्रोनाउन और प्रोनाउन टू नाउन आ सकता है, या आर्टिकल्स और नाउन भी आ सकता है। मतलब आपने देखा होगा कि वर्ब और नाउन भी आ रहा है, वर्ब प्रीपोजिशन नाउन भी आ रहा है। ओके, तो साथ में प्रोनाउन थ्री भी आ रहा है ओके और प्रोनाउन थ्री भी आ सकता है। तो ये सब क्या है, बस बाइंडर्स बोलते हैं। मतलब एक नाउन के साथ क्या क्या लग सकता है, एक नाउन के साथ एक एडजेक्टिव लग सकता है, प्रोनाउन टू लग सकता है, आर्टिकल लग सकता है अगर आगे आ रहा है। तो वर्ब के बाद में नाउन आ सकता है, वर्ब के बाद नाउन तो जरूर आएगा, प्रीपोजिशन के बिना आएगा या प्रीपोजिशन के साथ आएगा। क्योंकि नाउन बोलते हैं इसका मतलब है नाउन एक प्रोनाउन को भी लग सकता है। तो वर्ब के बाद आ रहा है तो वो रिसीवर होगा, इसलिए सिर्फ प्रोनाउन थ्री लगेगा। अगर नाउन यहाँ आ रहा है तो ऑब्वियसली वो एक डूअर होगा, सब्जेक्ट होगा, इसलिए प्रोनाउन टू पहले आता है। लाइक माई ब्रदर इज बीटिंग हिम, सो माई ब्रदर, यहाँ यहाँ भी एक नाउन आएगा एक्चुअली। माई ब्रदर इज बीटिंग, प्रोनाउन थ्री, हिम। ओके, सो इस तरह रूल्स हैं। ओके, तो आपको तो ये नाउन वाले सेगमेंट्स तो अभी समझ में आ गया ना? ठीक है, प्लीज राइट इट। हो गया? राइट, सो आगे जाते हैं। तो सेगमेंट्स आर प्रोवाइडिंग द कंडीशन, दिस इज द रूल। मतलब एक्चुअली लीनियर बिकम्स कंडीशनल बिकॉज ऑफ द सेगमेंट्स। तो हम कंडीशनल कंडीशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कंडीशन एक सेगमेंट देगा अब हमको। सो एक लीनियर कंडीशनल्स कैसा होते हैं यूजिंग द सेगमेंट्स, अभी मैं आपको बताऊंगा।
Okay, let us go back and see these sentences. Okay, ये linear है, ये conditionals है. Okay. Okay, for example अभी आप ये sentence देखिए, he does homework. Okay. he does homework अगर यहाँ तक होता तो वो एक लीनियर होता, Okay. लेकिन ये कंडीशनल हुआ क्योंकि एट आया इधर. जब एट आएगा तो एक नाउन आएगा, तो नाउन इधर आया स्टडी टेबल. ओके, Yes. तो एक्चुअली टेबल है, टेबल को एडजेक्टिव आया स्टडी, और एक प्रोनाउन टू भी आया. Okay. एक नाउन को प्रोनाउन टू आ सकता है, एक नाउन को एडजेक्टिव भी आ सकता है, ये पूरा साथ में आ गया. सो एट हिज स्टडी टेबल, और एवरी डे है एडवर्ब. Okay. तो ये पूरा जो है एक सेगमेंट है. ओके, ही डज होमवर्क एट हिज स्टडी टेबल एवरी डे. अभी ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई एम कमिंग लीनियर है, Okay. तो मैंने प्रिपोजिशन इस्तेमाल किया. ओके, प्रिपोजिशन, फिर ये आया वर्ब, और वर्ब के बाद आया प्रोनाउन थ्री. ओके, और लेट अस से टेक दिस, आई एम गुड. गुड के बाद प्रिपोजिशन आया, प्रिपोजिशन के बाद पेंटिंग आया. आई एम ए नाउन आना चाहिए एक्चुअली इधर, तो आई एम अ स्टूडेंट. दरअसल सेंटेंस स्टूडेंट है. Okay. ये कंडीशनल हुआ क्योंकि स्टूडेंट नाउन है, तो मैं एडजेक्टिव लगा सकता हूँ, Sure. Okay. तो ऐसा बड़ा हो गया. जैसे कि अभी आइए, ही इज वर्किंग. ही इज वर्किंग कैसा, ही इज वर्किंग हार्ड. दी, हाँ, दीज डेज अगेन प्रोनाउन थ्री, दीज आया देखिए, दीज डेज. सो हार्ड इज एन एडवर्ब फॉर दिस वर्ब. सो दिस इज अ सेगमेंट. सो हाउ इजी, ट्रिक बोलता हूँ मैं, अगर लीनियर को जब कंडीशनल बनाना है, फर्स्ट ट्रिक ये है, एक प्रिपोजिशन को जोड़ने से शुरू कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड फादर हो गया, यहाँ ही इज अ गुड फादर. ओके, उसके बाद आगे कुछ लगा ना, तो मैंने इस्तेमाल किया टू. यहाँ मैंने इस्तेमाल किया इन. यहाँ अगेन मैंने इस्तेमाल किया टू. यहाँ भी देखिए टू, टू. सो टू 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 में एक खास बात यह है, यहाँ बताता हूँ, जब भी टू आएगा उसके पहले एक वर्ब आ सकता है, उसके आगे एक वर्ब आ सकता है. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, मीट टू फिक्स, जैसे कि आई हैव मेट हिम टू फिक्स. एक्चुअली मीट टू फिक्स, वर्ब टू वर्ब, ये है वर्ब टू वर्ब, पर ये वर्ब को प्रोनाउन थ्री बाइंडर आ गया. ये प्रोनाउन थ्री है ना, तो मेट हिम. फिक्स को नाउन आया, क्या नाउन आया, अपॉइंटमेंट आया, और ये एन अपॉइंटमेंट के साथ आया. सो फिक्स एन अपॉइंटमेंट एक सेगमेंट है, मेट हिम एक सेगमेंट है, पर ये सेगमेंट और ये सेगमेंट टू के वजह से जोड़कर बड़ा सेगमेंट हो गया. आई हैव मेट हिम टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट. तो एक सेगमेंट को एक ही सांस में बोलना चाहिए, तब पढ़ने में अच्छा दिखता है और बोलने में भी अच्छा दिखता है, और ये याद करने में बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हम समझ कर याद कर रहे हैं. अभी आई हैव मेट हिम टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट. नाउ आई अंडरस्टैंड, ऐसा जब मैं रीड करता हूँ तो मुझे समझ में भी आता है और रिमेम्बरिंग भी हो जाता है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक. ठीक है, सो लाइक ही हैज टेकन तक रुक सकता हूँ, पर मैंने टेकन हर भी लगाया, प्रोनाउन थ्री, वर्ब के बाद प्रोनाउन थ्री आया, और ये वर्ब के बाद मैंने एक टू लगा दिया. अब ये तो रूल है, टू वर्ब आ सकता है, पर क्योंकि टू एक प्रीपोजिशन है, एक नॉन भी आ सकता है, राइट. तो टू को पार्टी आया. फिर जैसा है कि हमारा जो प्रिपोजिशन आएगा, हाँ हाँ, वो दो सेगमेंट को जोड़ता है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि वो जोड़ता है. अगर वो समझिए, मैं अभी ये सेगमेंट को हटा देता हूँ, ये टू हिज किड्स, ये मैं हटा दिया, ये वो भी तो कुछ जोड़ने वाली बात नहीं है, इसमें एडिंग डिटेल वाली बात है. नहीं, जो हाउ आई कैन प्रोनाउंस, हाउ यू कैन प्रोनाउंस दैट, दो सेगमेंट रहा तो उसके अंदर टू जो प्रिपोजिशन रहेगा, तो ही इज अ गुड फादर तो टू हिज किड्स. हाँ, देखिए, ये कंडीशनल में क्या है, हम एक सिचुएशन ऐड कर रहे हैं, एक कंडीशन ऐड कर रहे हैं. तो अक्सर ये होता है जब स्टूडेंट्स या लर्नर जो लीनियर से कंडीशनल वाले एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं, जिसमें टाइम ज़ाया हो जाता है.
तो मैं ये जो सेगमेंट्स जो मैंने बताया उससे थोड़ा फास्ट होगा। और वर्ब टू वर्ब एक बहुत बढ़िया सेगमेंट है। प्रीपोजिशन और नाउन और एक बढ़िया सेगमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप एक सिंपल सेंटेंस बता दिए, कुछ भी बता दीजिए, सिंपल सेंटेंस एक लीनियर वाला कुछ भी। आई एम गोइंग। ठीक है, आई एम गोइंग, अब ये तो लीनियर है। अभी मैं गोइंग वर्ब है ना, ओके तो मैं टू लगाऊंगा और एक वर्ब लगाऊंगा, लाइक आई एम गोइंग टू मीट। अब मीट के बाद मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, ओके हाँ माई हाँ। ब्रदर, हर, प्राइम मिनिस्टर। बट हाँ लगाओगे तो ये तो प्रोनाउन वन हो गया नहीं, वो ना। प्रोनाउन थ्री हो गया, हर। प्रोनाउन थ्री हो गया सॉरी। हाँ, प्रोनाउन थ्री हो गया। सो मैं सिर्फ आई एम गोइंग को मैं सेगमेंट्स तो हम अनेक सीखे, पर अगर सिर्फ ये दो सेगमेंट्स को याद करने से हम बहुत अच्छा बना सकते हैं सेंटेंसेस को, और बड़ा और डिटेल ऐड। जैसे कि आपने सिर्फ बोला आई एम गोइंग, मैंने वर्ब टू वर्ब इस्तेमाल किया ओके और मैंने बोला आई एम गोइंग टू मीट हर। ओके ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं प्रीपोजिशन लगाऊंगा उसको, आई एम गोइंग इन द कार। ओके। अब मैं कार को अकेला नहीं छोड़ूंगा, जब भी मुझे नाउन मिलेगा ना, मैं हम्म, उसको बहुत सारे सेगमेंट्स ऐड कर सकता हूं। जैसे कि आई एम गोइंग इन अ फास्ट कार, ओके आई एम गोइंग इन देयर फास्ट कार। मैंने प्रोनाउन टू भी ऐड किया और एडजेक्टिव भी ऐड किया कार को। ओके तो इस तरह हम ये दो से, ये वर्ब टू वर्ब और ये प्रीपोजिशन और नाउन को ऐड करते हुए शुरुआत कर सकते हैं एक कंडीशनल को। वो जो शुरू हो चुका है वो कंडीशनल पे और भी बाइंडर लगाकर और भी सेगमेंट्स लगाकर उसको और अच्छा बना सकते हैं। ठीक। तो ये अपने आप में आपका क्रिएटिविटी चालू हो जाएगा, आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके फॉर एग्जाम्पल मैं और एक कुछ दीजिए, मैं आप ही से करवाता हूँ। आई एम प्लेइंग। हाँ ठीक है, अभी बोलिए आप। प्लेइंग तो वर्ब आ गया, हाँ ठीक है। अब ये वर्ब टू और एक वर्ब लगाइए अभी, आई एम प्लेइंग टू, आई एम टू प्लेइंग। के बाद और एक एक्शन लगाइए, बिकम, समझिए बिकम। अभी बनाइए सेंटेंस आप, आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग टू बिकम हाँ, ए प्लेयर। राइट। आई एम प्लेइंग टू बिकम अ चैंपियन, आई एम प्लेइंग टू बिकम अ प्लेयर। अभी आपने प्लेयर लगाया, तो प्लेयर नाउन है, यस तो मैं नाउन को सिर्फ नाउन क्यों लिखता हूं, मैं उसको एडजेक्टिव ऐड कर सकता हूं, प्रोनाउन टू ऐड कर सकता हूं। ओके आई एम प्लेइंग टू बिकम अ प्लेयर के बजाय अ गुड प्लेयर, ओके द बेस्ट प्लेयर। ओके हो गया। यस अभी मैं रोकूंगा नहीं, मैं और भी ऐड कर सकता हूं, मैं अभी प्रीपोजिशन ऐड करूंगा उसको। आई एम प्लेइंग टू बिकम द बेस्ट प्लेयर इन, मैंने लगाया अभी इन आया, प्रीपोजिशन आया तो नाउन आएगा प्रीपोजिशन के बाद, तो वो नाउन होगा कम्युनिटी, ओके कॉलेज, स्कूल, कंपनी, कुछ भी लगा दीजिए। अभी देखिए, आई एम गोइंग, आई एम सॉरी, आई एम प्लेइंग टू बिकम द बेस्ट प्लेयर इन माई कॉलेज। ओके तो ये सेंटेंस आपने बस सिंपल सेगमेंट्स इस्तेमाल करके अभी इतना बड़ा जो बनाया, इसमें कंटेक्स्ट है, मीनिंग है, और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है कि ओके, दिस मीनिंगफुल सेंटेंस दैट यू मेड। और वो लीनियर जितना सिंपल नहीं है। ओके कंडीशनल दिखता है कॉम्प्लिकेटेड, पर जब हम सेगमेंट्स लगा के बनाते हैं वो एक्चुअली वेरी सिंपल हो जाते हैं, एक लीनियर की तरह। तो ये सेंटेंस आपने बनाया, अभी आप ही बोलिए आपका सेंटेंस। आई एम प्लेइंग हम्म टू बिकम हम्म ए हम्म बेस्ट प्लेयर। ओके, नो नो, इट्स नॉट ए बेस्ट प्लेयर, इट्स दी बेस्ट प्लेयर। जब भी बेस्ट आएगा तो दी आना चाहिए। हम्म, प्रिपरेशन रहेगा तो सर रहेगा। नहीं नहीं, जब भी सुपरलेटिव रहेगा डिग्रीज में, ओके तो लाइक द बेस्ट बोलना चाहिए, द फास्टेस्ट कार, द हाईएस्ट बिल्डिंग, द आता है, ओके ओके ए और सुपरलेटिव नहीं आना चाहिए। ओके ठीक है। शुरू से। आई एम प्लेइंग हम्म to become हम्म become the
best player हम्म, in our school. राइट, ठीक है। अभी आवर ने आप ही लगा दिया अपने आप, आवर प्रोनाउन टू आ गया, आपको सोचना भी नहीं पड़ा, अपने आप आ गया वो। आपको ट्रिगर्स बोलते हैं, ये दो आप ट्रिगर्स इस्तेमाल कीजिए, वर्ब टू वर्ब और प्रिपोजिशन नाउन। ये दो ट्रिगर के बाद, उसके बाद आप प्रिपोजिशन नाउन और भी लगा सकते हैं, और अच्छा बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल और एक बता, वही उसी को मैं इतना बड़ा बनाता हूँ, आप देखिए। आई एम प्लेइंग टू बिकम द बेस्ट प्लेयर, जो है ना, अभी देखिए, आई एम प्लेइंग टू बिकम द बेस्ट प्लेयर विथ माई ब्रदर, ओके, आई एम प्लेइंग टू बिकम द बेस्ट प्लेयर विथ माई ब्रदर इन आवर स्कूल। Okay. तो विथ माई ब्रदर, विथ आया, विथ को ब्रदर नाउन आया और ब्रदर को माई आया प्रोनाउन टू। Okay. इस तरह मैं अनेक प्रोनाउन प्रिपोजिशन नाउन लगाकर और बड़ा कर सकता हूं, पर शुरुआत ये दो ट्रिगर के साथ आप बहुत अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं। Okay. ओके, सो इस तरह ये सेगमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए आप कंडीशनल्स यू कैन मेक ऑन योर ओन। ओके, अभी और एक ट्राई करते हैं, ठीक है, और एक कुछ लीनियर बोलिए, सिंपल वाला बोलिए, कुछ भी, Time study. ठीक है। ऐसा करते हैं इस बार, जैसे कि हैव इस्तेमाल कीजिए आपके सेंटेंस में, और एक पार्टिसिपल इस्तेमाल कीजिए। अब बोलिए। I have reached. ओके, आई हैव रीच्ड, Yeah. ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। तो रीच्ड भी वर्ब है, Yes. पार्टिसिपल है पर हालांकि वर्ब है। तो मैं अब ट्रिगर इस्तेमाल करता हूँ, वर्ब टू वर्ब इस्तेमाल करता हूँ। ओके, आई हैव रीच्ड टू मीट, मैंने मीट लगा दिया, अब मैं मीट के लिए कुछ नाउन लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो वर्ब है, तो वर्ब है तो रिसीवर होगा। तो मीट तो है, तो मीट मीट किसको कर रहा हूँ? My friend. फ्रेंड, अच्छा, डिड यू से गर्लफ्रेंड और फ्रेंड? Friend. ओके, सो आई हैव रीच्ड टू मीट माई फ्रेंड। तो मैं फ्रेंड को बाइंडर अटैच कर सकता हूँ, डियर, बेस्ट, या डियर, बेस्ट, गर्ल, लवली, whatever. Okay, childhood, I have reached to meet my best friend, Okay. और मैं प्रोनाउन थ्री लगा सकता हूँ, here, I have reached to meet my best friend here। Okay. अब देखिए, सुनने में भी मजा आता है कि हमने बनाया इतना बड़ा सेंटेंस, but it's very simple, but look at the meaning, there's such a beautiful meaning. We are just using simple rules to construct really meaningful and conditional sentences, right? Yes. Do you and you will actually enjoy the process of making sentences using conditional rules, जो मैं बता रहा हूँ आपको। Okay. ओके, सो अभी इस बार, अब तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, इस बार मैं बस सेंटेंस आपको बनाने के लिए बोलूंगा, आप ही बनाइए और आप ही बताइए। फॉर एग्जांपल, लेट अस से वी आर यूजिंग हैज एंड अ नाउन। नहीं, हैज इस्तेमाल करना चाहिए आपको, नॉट हैव। Cricketer. ही हैज अ व्हाट? आई एम सॉरी, Cricketer. he has a cricketer. Yeah. Okay, are you saying he is a cricketer or he has a cricketer? He is a cricketer. मतलब उसके पास एक क्रिकेटर है? He is a cricketer. नहीं, मुझे इज नहीं, हैज चाहिए। हैज चाहिए, नाउन चाहिए, सिंपल है यार, कुछ भी बना दो, ही हैज समथिंग, जस्ट पुट अ थिंग। He is a dog. He's already. हाँ, कुछ और बना दीजिए, He is a car. बस, राइट, ही हैज अ कार। ओके, तो अभी ही हैज अ कार, अब यहाँ ट्रिगर मैंने भी इस्तेमाल किया टू, आप भी टू लगाइए। He is a car too. अब एक वर्ब लगाइए, टू के बाद वर्ब आ सकता है, तो आपने टू लगा ही दिया, तो वर्ब भी लगा दीजिए, वो टू का बाइंडर होगा। Uh, to meet. हम्म To meet हम्म his हम्म best friend. ओके, राइट, Yeah. ओके, ही हैज अ कार टू मीट हिज Best friend. बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अभी बाइंडर और लगाएंगे, कार को कुछ और लगाओ, फ्रेंड को कुछ और ऐड करो, एडजेक्टिव्स लगाओ, नाउन्स को खाली मत छोड़ना। अब ये आदत डालो, नाउन को खाली कभी मत छोड़ना, बाइंडर लगाओ,
बाइंडर लगाओ, बाइंडर लगाओ, एडजेक्टिव लगाओ या प्रोनाउन टू लगाओ या आर्टिकल लगाओ या मिलके भी लगाओ, पर ज़रूर लगाना। बोलिए। best friend at पूरा पूरा सेंटेंस बोलिए एक ही साथ। he's the car to हम्म meet his best friend. हम्म। तो कार, कौन सा कार, कैसा वाला कार, सिर्फ कार? Lovely car. लवली कार, राइट, ही हैज़ अ लवली कार टू मीट हिज बेस्ट फ्रेंड, राइट। Yes. ओके, अभी अभी प्रीपोजिशन और नाउन लगाइए उसको आखिर में। जनरली इन लगाइए, इनसे पॉसिबिलिटीज अनेक आते हैं। So he's a lovely car to meet his best friend. हम्म In the हम्म। place का नाम is सिटी, in the city. राइट। ओके, Yeah. अब सिटी को खाली मत छोड़ना, उसको भी एक लगा दो। इसमें भी तो preposition लग रहा है. The city. नहीं नहीं नहीं, सिटी को एडजेक्टिव या प्रोनाउन टू लगेगा। Okay. हाँ In the best city. हाँ ठीक है, अब पूरा सेंटेंस बोलिए आप। He is a lovely car to meet his best friend. हम्म In the best city. हम्म, राइट। Mumbai. नहीं, हाँ, सिटी की जगह मुंबई लगाइए, Best in the Mumbai. राइट। Best city Mumbai नहीं होता. बेस्ट सिटी, उसको ऐसा बोल सकते हैं, बेस्ट, he has a car to meet his friend in Mumbai, Okay. which is the best city. Okay, which is the best city, the best city, I mean. Okay, Yes. right? Yes. So this is how you have to make conditionals. तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है जो कॉम्बिनेशन टेबल जो है जिसमें आपने लीनियर सेंटेंसेस बनाया 56 सेंटेंसेस, डू यू रिमेंबर? हाँ पहले जो बनाया. राइट, वही 56 इस बार आप कंडीशनल्स बनाएंगे। Okay. मतलब हर एक सेंटेंस में कंडीशन होगा, कुछ ना कुछ मतलब कंडीशन होगा। आप सोचिए, आपका क्रिएटिविटी जब जब धीमी पड़ जाती है तो आप सेगमेंट्स की मदद लीजिए, अपने आप सेंटेंसेस आ जाएंगे। okay. और जिस तरह आप बनाएंगे इसमें टाइम लगेगा, लीनियर की जितना जल्दी तो नहीं होगा, टाइम लगेगा। वो जो टाइम लग रहा है वो टाइम में आपके दिमाग में न्यू कम्युनिकेशन चैनल्स बन रहे हैं। You are acquainting your brain with new communication structures. तो जो कम्युनिकेशन टेबल है उसका ये बनाना पड़ेगा. सेम कॉम्बिनेशन टेबल का इस बार कंडीशनल बनाएंगे, अच्छा लिनियर कंडीशनल बनाना पड़ेगा. कंडीशनल बनाना पड़ेगा इस बार। और कंडीशनल में पहले 56 कंडीशनल बनाएंगे, उसके बाद फिर और एक दूसरा सेट ऑफ 56 बनाएंगे। Okay. ओके, 2 बार बनाना है कंडीशनल्स। तो ये है होमवर्क हमारा। Okay. No, वो जो टेबल था प्रेजेंट पास्ट इसका ही है ना. जैसे ये जो टेबल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, Okay. ये भी एक कॉम्बिनेशन टेबल है, नीचे और भी है। तो ये कॉम्बिनेशन टेबल है, अभी ये जो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये 6 आएंगे। जैसे प्रेजेंट में आई ईट है हाँ और आई डिड ईट है उसके बाद हाँ आई ईट है राइट, उसी में बनाना है. हाँ हाँ राइट, पर कंडीशनल बनाना है। Okay. ओके, इस बार ये पूरा जो है, मतलब यहाँ 6 होंगे, यहाँ 18 होंगे, यहाँ 12 होंगे और नीचे फिर 18 होंगे। ये पूरे जो है 54, आई मीन 54, राइट, या 54 आपको कंडीशनल बनाना है, 2 बार बनाना है, मतलब 2 बार सोचना पड़ेगा आपको। Okay. क्योंकि ये जो 2 बार का आप इतने जो प्रैक्टिस करेंगे, हाँ आप ट्रस्ट में योर कॉन्फिडेंस लेवल विल सोर लाइक एनीथिंग आफ्टर दिस होमवर्क, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. ओके, सो आई होप इसको तो टाइम लगेगा, कल तो नहीं हो पाएगा. मुझे नहीं लग रहा है कल हो पाएगा. ओके, या ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। ये जनरली 1 या 2 दिन लगते हैं करने को, डजेंट मैटर, टाइम इज नॉट द पॉइंट। ये काम करेंगे, दैट इज द पॉइंट। सबका कंडीशनल बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, विदाउट मिस्टेक्स बनाएंगे, वो प्रायोरिटी लगाइए आप। Okay. वो जो टाइम लगेगा उसको लगने दीजिए, वो सही टाइम है, दैट इज द फास्टेस्ट टाइम। आप टाइम की चिंता मत कीजिए, काम काम पे ध्यान दीजिए, टाइम अपने आप निकल जाएगा। Okay. और जो निकल रहा है तो अच्छी बात है ना, काम में तो निकला, हाँ तो बस ठीक है। ये दो डॉक्यूमेंट मुझे सेंड कर दीजिए. Definitely, I will send it. So I am ending this video. I hope you understood the difference between linear and conditionals. I hope you understood how conditional segments
can help you to develop sentences with great detail. And also I hope you understood how you can actually make linear sentences bigger using conditional segments, Okay. right? Yes. Right, okay. So thanks for attending my class.